کے لیے جو آج خداوند نے ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو اپنے پورے گروپ کو خداوند کے ہینڈ اوور کرتے ہیں خداوند پاک روح کے، تاکہ اس پوری میٹنگ کا ہولڈ خداوند پاک روح اپنے ہاتھ میں لیں، تاکہ ہم جو بولیں، جو اس ٹائم ورشپ کریں اور جو کلام ہو وہ خداوند کی طرف سے. پریز لارڈ. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. میں ایک ورس پڑھنا چاہوں گی. میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ خداوند نے میری منت کی آواز سن لی ہے. کیونکہ جس دن میں نے اسے پکارا اس نے میری طرف کان جھکایا. پریز لارڈ. ہم سب کا ایمان ہے کہ جب ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے اینی ٹائم ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. یہ بھی خداوند کا پلان ہے کہ وہ ہمارے درمیان اس ٹائم بھی موجود ہیں. ہمارے آنے سے پہلے وہ یہاں پہ موجود ہیں. ان کا خداوند کا تخت ہمارے درمیان لگ چکا ہے. اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. ہم خداوند پاک روح کو، خداوند یسوع مسیح کو اور اپنے خداوند کو ویلکم کہتے ہیں. اب میں اپنی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کروں گی اور میں سسٹر سارا سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آئیں اور اوپننگ پریئر میں ہماری رہنمائی کریں. پریز لارڈ. جی ٹھیک ہے. بابا اس کا شکر اس وقت اس موقع تاکہ آپ کو ذمہ حاضر ہو سکے، اس پیمنٹ کو جوائن کر سکے. باپ اس کے دن شکر ادا کرتے ہیں پورا کہ آپ کا تک یہاں پہ لگ چکا ہے، آپ یہاں موجود ہیں. باپ اس پیمنٹ کا ہالڈ میں آپ کو دے دیتے ہیں. بس پیمنٹ سب کے ساتھ ساتھ ہوئے گا. کوشش کرتے ہیں پاک کلام سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. باپ جتنی ہم دعائیں کرتے ہیں ساری آپ کو مانی پہنچتے ہیں. باپ اور باپ جو پرسش کرتے ہیں ہمیں پرسش کی وہ تک لگ جائے. باپ ہماری پرسش کا طریقہ آپ کو پسند آئے. باپ جو پاک کلام سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے بات سے برکت ہے. باپ ہم آپ کے پاک کلام کے کلمات کو سمجھ سکیں. باپ پاک کلام کے سارے پھر ہمارے پر کھلے ہیں. بات نہیں ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں وہ سارے پھر ہمارے پاس جو آپ جلد سے جلد ملے. تبھی کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے بیٹے مسیح کے نام سے. آمین. آمین. پریز لارڈ. پریز لارڈ. اب میں ایک ورس پڑھنا چاہوں گی. خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے. اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے. پریز لارڈ. اب ہم اپنی ورشپ کا آغاز کریں گے اور میں سسٹر مہندر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ورشپ میں ہماری رہنمائی کریں. سسٹر مہندر. یس لارڈ. یس لارڈ. جانسی کی ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ. ਹੈਲੋ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ. ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਰਾਵਰ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ. ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਯਿਸੂ ਜਾ. ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ. ਜੋ ਵੀ ਭਜਨ ਬੋਲੀਏ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋ. ਧੰਨਵਾਦ. ਹਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ. ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ. ਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ. ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ. ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਏਂਗਾ. ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਏਂਗਾ. ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਪੈਰੇ ਲਾਏਂਗਾ. ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਪੈਰੇ ਲਾਏਂਗਾ. ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇਂਗਾ. ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ. ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਖਲਾਰੇਂਗਾ. ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁਕੂੰਗਾ, ਨਾ ਮਟਕੀ ਚੋਂ ਆਟਾ.
हर थां तेरी जित होंगी, ना पाऊंगा काटा, ना कुपी चों तेल मुकूंगा, ना मटकी चों आटा। हर थां तेरी जित होएगी, ना पाऊंगा काटा। जिन्ने ने बिगड़े काम जशू जी आप सवारेगा, उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा, उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। जे डिग पे जशू जी पूचों कढेगा, तेरा रब राखा रब खदा दड़िए दे सुच्चे दा। जे डिग पे जशू जी तेनू खूचों कढेगा, मेरा आपे रब खदा दड़िए दे सुच्चे दा। जिन्ने ने बिगड़े काम यीशु जी आप सवारेगा, उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा, उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। हालेलुया, प्रभु दा धन्यवाद। प्रेस लॉर्ड। हालेलुया, तारीफ। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू आंटी जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। ऐ सब कौमों खुदावंद की हमद करो, ऐ सब उम्मतों इसकी तौसीफ करो, क्योंकि इसकी रहमत हम पर है और खुदावंद की वफा अबद तक कायम है। आमीन। अब मैं नेक्स्ट वर्शिप के लिए सिस्टर वफा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और मेरी आगे रहनुमाई करें वर्शिप में। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आवाज मेरी ठीक है ना? ब्रेक तो नहीं ना हो रही? ओके सिस्टर वफा जी जी, आवाज मैंने कहा मेरी आ रही है ना? जी सिस्टर जी आ रही है। बंद हुई ओके। थी मेरी तो। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनु धन धन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनु धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा भगता वाले ने, ਜਿਹੜੇ घर विच तेरे ਰਹਿੰਦੇ ने। ओ भागा भगता वाले ने, ਜਿਹੜੇ घर विच तेरे ਰਹਿੰਦੇ ने। सूली चढ़ गए जग दे कारण, सूली चढ़ गए जग दे कारण, विगड़े तिगड़े काज सवारन, विगड़े तिगड़े काज सवारन, विगड़े तिगड़े काज सवारन। तेरे रोगां दा ओ दारू ਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਉਹ दारू ਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਸਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾਸਰੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ,
हंस हंस जाम शहादत पीता, हंस हंस जाम शहादत पीता, हंस हंस जाम शहादत पीता। किसे मुश्किल को लो डर दे नहीं, हर दुखड़ा जानते सहंदे ने। किसे मुश्किल को लो डर दे नहीं, हर दुखड़ा जानते सहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा भगता वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे, और इसके किसी एहसान को फरामोश ना कर, वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ करेगा। प्रेज लॉर्ड। यकीनन खुदावंद ही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला और हमें बरकत देने वाला है। प्रेज लॉर्ड। अब मैं अरूसा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वर्शिप में हमें आगे लीड करें। सिस्टर अरूसा। एक मिनट बस। रूपास की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे रास्ती का लिबास दे, मुझे रास्ती का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मैला हूँ सर से पाँव तक अपने गुनाहों की गर्द से, मैला हूँ सर से पाँव तक अपने गुनाहों की गर्द से, अपने गुनाहों की गर्द से। मुझे धोके अपने खून से मेरा रंग रूप निखार दे, मुझे रास्ती का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। बेदीनियों की आंधियां मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई, बेदीनियों की आंधियां मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई, मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई। मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे छू के रंग बहार दे, मुझे रास्ते का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। तुझे छोड़कर मेरे नासरी
हुआ उलझनों का शिकार मैं तुझे छोड़कर मेरे नासरी। हुआ उलझनों का शिकार मैं, हुआ उलझनों का शिकार मैं, मुझे रंग के अपने रंग में मेरी आकबत को सवार दे। मुझे रास्ती का लिबास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वर्स पढ़ूंगी। खुदावन इन सब के नजदीक है जो इसे पुकारते हैं, यानी जो इसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। वो अपने डरने वालों की ख्वाहिश पूरी करता है। प्रेज लॉर्ड। हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। अब मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और इबादत में आगे हमें लीड करें, और हम लोग जो रोटी और पानी के लिए प्रेयर करते हैं वो भी करें। प्रेज लॉर्ड। वेलकम कहते हैं सिस्टर को। गॉड ब्लेस यू सनिया। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से आपको इस्तेमाल करे। खुदावंद का मसा आपके ऊपर ठहरा रहे और खुदावंद का हाथ आपके ऊपर बड़ा रहे। खुदावंद अपने परों में छुपा के रखे अपनी फैमिली के लिए, इस ग्रुप के लिए। खुदावंद आपको बाइस से बरकत बनाता रहे और खुदावंद हमेशा आपके साथ गीतों के जरिए और ख्वाबों में रोया में कलाम करता रहे। उनका शुक्र करते हैं प्रस्तिश के लिए, उसकी यहाँ पे मौजूदगी के लिए कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद ने अपने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है हमारे चपेट, वो ठहरे हुए हैं। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे पाक नाम के लिए, तेरे लहू बहाने के लिए। खुदावंद बाप तेरे बेटे यीशु के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जो खुदावंद तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए खुदावंद कुर्बान होने के लिए बख्श दिया, ताकि हम नजात पाए, हम रिहाई पाए, हम शैतान से छुड़ाए जाए, हम उस आग की झील से बच जाए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। वरना खुदावंद हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि खुदावंद तू हमें जिस तरह गैर कौमें खुदावंद बुतों की प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद हम भी उन्हीं में से थे, लेकिन खुदावंद तूने हमें अलग कर लिया, तूने अपने लिए हमें चुन लिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे रहम तेरे तरस के लिए। खुदावंद बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद बाप, खुदावंद मैं अपने आप को, ग्रुप के एक एक मेंबर को और जो खास तौर पे इस मीटिंग में मौजूद हैं, सबको खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। एक एक को खुदा जो कुछ हमारे खिलाफ बोला गया, लिखा गया, पढ़ा गया है, उसको यीशु नाम से कैंसिल कर देती हूँ। खुदावंद कहीं भी किसी ने हमारे खिलाफ खुदावंद कोई तवीज धागा, कोई जादू टोना कुछ भी किया हुआ है, खुदा यीशु के नाम से उसको कैंसिल कर देती हूँ। जो भी इब्लीस के प्लान हैं हमारे इस ग्रुप के खिलाफ, हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के खिलाफ, यीशु के नाम से उनको कैंसिल कर देती हूँ। उसके सारे मंसूबे फेल हो जाएं यीशु के नाम से। खुदावंद उसका कोई जोर हमारे ऊपर चलने ना पाए। खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद ये बदन तेरे लहू से, तेरे पाक पवित्र लहू से खरीदे हुए हैं। तेरी मोहर हमारे ऊपर लगी हुई है, इसलिए शैतान का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमें बीमारी
में लेके जाए, वो हमें दुख, परेशानी, दर्द दे खुदा यीशु के नाम से उसका सारा असर जो भी लानते हैं यीशु के नाम से वो सारा उसका असर खत्म हो जाए, कैंसल हो जाए। हमारी रूह, बदन और जान से खुदा जो कुछ भी ऐसी स्पिरिट्स हमारे रूह, बदन, जान के साथ जुड़ गई हैं, कहीं हमारी गलती से या हमारे बाप दादा ने कुछ ऐसा किया था, तुझे दुख दिया था, तुझे नाराज किया था, जादूगरी की थी, हरामकारी की थी, जनाकारियां की थी, झूठ, फरेब, गुस्सा, नाराजगी, खुदा किसी को ना माफ करने की जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर थी, खुदा यीशु के नाम से उनके सारे लिंक को ब्रेक कर देती हूँ, उन सारी डोरियों को यीशु के नाम से खोल देती हूँ, खुदा वो सारी जंजीरों को खोल देती हूँ यीशु के नाम से। हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर खुदा तेरा खास मसा, तेरी खास हजूरी जो है वो ठहरी रहे, तेरा कुदरत वाली रूह, तेरे जोरावर मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत वाली रूह खुदा हमारे अंदर काम करे, कोई भी अबलीस का प्लान हमारी जिंदगियों में काम ना करने पाए यीशु के नाम से। खुदा यीशु तू हमारी जिंदगियों में ऊंचा हो, इज्जत और जलाल पाए खुदा। कहीं हमारी बदन के किसी हिस्से में किसी बीमारी ने हमें जकड़ा हुआ है खुदा, कोई दर्दे हैं, कोई मैदे की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, गले का प्रॉब्लम है खुदा, बवासीर की प्रॉब्लम है खुदा यीशु के नाम से, आंखों की कमजोरी है खुदा यीशु के नाम से, हमारे बदन से उसके सारे लिंक को कैंसिल कर देती हूँ, उसको अपने बदन के अंदर से, बदन के अज़ा से निकल जाने का हुक्म देती हूँ, उसकी जड़ों को काट देती हूँ यीशु के नाम से। खुदा जो तूने अपने खुदा यीशु कलवरी पे खून बहाया खुदा, उसी तेरे लहू को मैं एक एक के ऊपर मांग लेती हूँ खुदा, जो तूने गतसमनी के बाग में लहू बहाया खुदा तेरा लहू बूंदों की माने टपक पड़ा खुदा, उसी तेरे लहू को अपने बदन के, जिस्म के अंदर के अज़ा में एक एक पे लगा देती हूँ यीशु के नाम से। कोई नामो निशान न रहे यीशु के नाम से। वो अंदरूनी जो हमारी बीमारियां हैं, जो हम किसी से कह नहीं सकते, जिसका किसी को समझ नहीं लगती खुदा, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियों की, वो सारी बदी की कुफ्तों को खुदा, वो बीमारी की सारी उन बदरूहों को यीशु के नाम से बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। खुदा तेरे बंदे खुदा तुझ में कुव्वत पाए खुदा, शिफा को रिसीव करें खुदा, हमारे रूह, बदन और जान में खुदा तेरी शिफा नस नस में, रग रग में दौड़ जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा कहीं कोई नामो निशान ना रहे खुदा, जिस तरह तूने मिस्रियों को खुदा समंदर की तह में गर्क कर दिया था खुदा, तूने अमालेकियों को मिटा दिया था खुदा, उसी तौर से खुदा तू हमारे अभी दुश्मन की फौजें जो हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, उसका नामो निशान मिटा दे खुदा, तेरा फरिश्ता उनको रेगेतता जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा जिन बुरी आंखों ने हमारी तरफ देखा है खुदा, जो हाथ उसने हमारी तरफ बढ़ाए हैं, उन हाथों को काट देते हैं, उन उंगलियों को काट देते हैं, उन बाजुओं को काट देते हैं यीशु के नाम से। खुदा कोई भी जिसने हमारे फाइनेंस को जकड़ा हुआ है, कैद किया हुआ है, हम रोका हुआ है यीशु के नाम से खुदा उन सारी बदी की कुव्वतों को जो हमारी कमाई में बरकत नहीं आने देती, उस सुराखदार खुदा थैली को यीशु के नाम से बंद कर देती हूँ, उन सुराखों को खुदा जो हमारे रुपए पैसे को जाया करते हैं यीशु के नाम से। खुदा वो सारे दरवाजे, खिड़कियां बंद कर देती हूँ यीशु के नाम से। खुदा तेरी खुशहाली को, बहाली को, शिफा को खुदा मीटिंग में जो इस वक्त मौजूद हैं उन सब की जिंदगियों में मांगती हूँ खुदा यीशु के नाम से। कोई भी असर बाकी ना रहे खुदा यीशु, और हम तुझ में कुव्वत को हासिल करते जाएं खुदा नया जोर, नया मजा खुदा तेरी तरफ से हमारे ऊपर आ जाए खुदा यीशु के नाम से। तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ एक एक जगह खुदा, तेरे जंगजू, तेरे सुरमा फरिश्ते खुदा, तेरे जोर आवर फरिश्ते खुदा, तेरे खुदा हीलिंग वाले फरिश्ते, मसाफत वाले फरिश्ते खुदा तेरे मददगार फरिश्तों को खुदा तेरे तकवीत देने वाले फरिश्तों को एक एक के ऊपर मुकर्रर कर देती हूँ। जब जहाँ कहीं भी हम जाएं खुदा तेरे फरिश्ते हमारी हिफाजत करें, निगहबानी करें खुदा, हमारी तरफ से होके जंग करें खुदा, और दुश्मन को हम हर लम्हा, हर पल, एक एक
खुदा मिनट में खुदा यस्सु के नाम से पांव तले कुचलते जाए, उसका कोई असर हमारी जिंदगियों में बाकी ना रहे खुदा यस्सु के नाम से खुदा हम तेरी तरह खुदा दुश्मन के सारे किलों को मसमार कर दें, उसकी सारी जो उसने हमारे खिलाफ लिखा है, बोला है खुदा, जो उसने हमारी सोचों को कंट्रोल किया है खुदा, किसी भी तरीके से किसी परेशानी में खुदा वो हमें लेके गया, यस्सु के नाम से उनके सारे किलों को मसमार कर देती हूँ। उन यरू की दीवारों को जो उसने हमारे जहन के चौगिर्द खड़ी की हुई हैं, उनको गिरा देती हूँ। जिसने हमारी अक्लों को बंद किया हुआ है, तेरे गहरे मकाशपात को वो खोलने नहीं देते, समझने नहीं देते। यस्सु के नाम से उन सारी दुश्मन की फौजों को खुदा मैं पीछे हटने का हुक्म देती हूँ। दुश्मन की फौजें खुदा पानी की तरह बह जाएं तेरे सामने खुदा वो ठहर ना सके, खुदा उनको आग लगती रहे यस्सु के नाम से खुदा, और हम तेरे लोग खुदा तुझ में खुदा तसल्ली को, इत्मीनान को खुदा बुलंदियों पे जाए खुदा तेरी शिफा को रिसीव करें खुदा हम ऊंचाइयों पे जाएं खुदा और खुदा वो इब्राहिम के जो वादे हैं खुदा तूने जो अपने बंदा के साथ अहद बांधे हैं, वो खुदा हमारी जिंदगियों में पूरे हों खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरा अबर हमारे ऊपर हमेशा छाए रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह तू आ नहीं जाता, हमें अपने साथ ले नहीं जाता खुदा तेरे तू हमें अपने परों में छुपा के रख, हमें अपने सीने से लगा के रख खुदा, हम तेरे दिल की बातों को जाने, उस पे अमल करें खुदा, हम तेरे दिल की धड़कनों को सुने खुदा हमारी हमारे अंदर खुदा तेरी मोहब्बत की आग लग जाए खुदा जो कभी बुझने ना पाए खुदा यीशु के नाम से हमारी हड्डियों में, गोश्त में, गुर्दे में, नसों में, नस नस में खुदा तू बस जा खुदा, हमें कोई और नजर ना आए खुदा यीशु सवाए तेरे खुदा यीशु तू हमारा दूल्हा है खुदा, तू हमारी फिक्र करता है, तू हमारा मुहाफिज है, तू हमें संभाल के रखता है खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु तेरे इस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, तेरी इस फिक्र के लिए खुदा जो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, ना हमारी माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, कोई रिश्तेदार, कोई भी दुनिया में हमारी इस तरह की फिक्र नहीं कर सकता खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारे पास ऐसा खुदा है, हमारे पास ऐसा दोस्त है, हमारे पास ऐसा हमारा शौहर है जिसने हमारी खातिर जान दी है, जिसने हमारी सारी बुराइयां, हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। ऐसे खुदा की हम कदमों को चूमते हैं खुदा यस्सु, हम तेरे आगे अपने सरों को झुकाते हैं क्योंकि सिवाय तेरे कोई खुदा नहीं है, कोई नहीं है दुनिया में जिसके आगे ये सर झुके खुदा यस्सु के नाम से खुदा तेरा मसा हमेशा हमारे ऊपर ठहरा रहे खुदा यीशु, जब तू आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों खुदा यीशु, हम तेरे साथ जाने वाले हों खुदा यीशु के नाम से। हमारी जो कॉलिंग है खुदा हम उस तख्त तक पहुंचे खुदा, उस सहून तक, उस नए यरूशलेम तक खुदा तू और खुदा पाक रूह तू हमें तैयार कर सकता है, तू हमें लेके जा सकता है खुदा, हम अपने आप को, अपने बदनों को तेरे सुपुर्द कर देते हैं खुदा पाक रूह तू हमें तैयार कर खुदा, हम यीशु की मानिद बनना चाहते हैं, हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह का मजाज आ जाए, उसका बिहेवियर आ जाए खुदा जैसा, जैसे वो खुदा अपने बाप का फरमाबरदार था, वो फरमाबरदारी की रूह हमारे अंदर आ जाए खुदा हम तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले हों, वो रास्तबाजी का लिबास हम पहन लें ताकि खुदा जब तू आए तो खुदा हमारे कपड़ों पे वो दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना रहे खुदा यस्सु के नाम से खुदा जब हम इस पानी को पीते हैं, इस रोटी को लेते हैं और खुदावंद इस ऑयल को लगाते हैं, तो खुदावंद हमारे घरों से, हमारे बदनों के अंदर से, बाहर से खुदावंद यीशु के नाम से वो सारे दाग, वो धब्बे, वो झुर्रियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदावंद, उनका नामो निशान मिट जाए खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, और तू हमारी जिंदगियों में ऊंचा हो खुदावंद, तू सरबुलंद हो खुदावंद खुदा, हमारी बीमारियां खुदावंद जड़ से खत्म हो जाए, हमारी परेशानियां खुदा जड़ से खत्म हो जाए खुदा हमारे अंदर खुदा तेरी कुदरत, तेरा जलाल खुदा जो दूसरों को नजर आए कि हम यीशु तेरे दुल्हन हैं, तेरे लोग हैं खुदा हम दुनिया से अलग किए हुए हैं यीशु के नाम से खुदा एक एक के ऊपर खुदा तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी ठहरी रहे खुदा यीशु के नाम से खुदा हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से
मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। आप ईमान से इस पानी को पिएं जो कि अब खुदावंद यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया है, और इस रोटी को लें जो खुदावंद यीशु मसीह के बदन में तब्दील हो गई है। जब हम इसको लें तो ये हमें पाक और साफ कर दे, सारी गलाजत, सारी गंदगी, नापाकी हमारे अंदर से, बीमारियां खत्म होते हैं, और खुदावंद हम तुझ में जोर को और ताकत को पकड़ते जाएं और पाक होते जाएं। हालेलुया। आप ईमान से पानी को पिएं और रोटी को लें। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम काशफा की किताब उसका जो 11 चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा उस पे हमने बात की थी, और थोड़ा हम देखेंगे कि आज जो है हम आगे बात करें। एक मिनट। हमारे साथ रीडिंग में कौन है? बाजी तो मैं हूँ। ओके जी, ठीक है। और उर्दू में वफा। सिस्टर वफा है। ओके जी, वफा, ठीक है। हाँ जी, हम जो बाकी का रह गया था, मेरे ख्याल हमने 10 आयत तक पढ़ा था, है ना। उससे आगे हम पढ़ते हैं मुकाशफा की किताब 11 बाब, उसकी 11 आयत से आप एंड तक पढ़ें, फिर हम देखते हैं। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਟਹਿਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਗਰੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ 7000 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਹਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੂਜਾ ਅਫਸੋਸ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਤੀਜਾ ਅਫਸੋਸ ਝੱਬਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਆਈ, ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ 24 ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕੌਮਾਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਣ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪਏ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड जी। हाँ जी, वफा पढ़ो। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए, और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदावार हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई,
और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया और ये कहा कि ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ और वो वक्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों, मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। आमीन। हाँ जी, आमीन। गॉड ब्लेस यू अंजना और वफा। हमने इस चैप्टर के शुरू में थोड़ा सीखा था, है ना, कि जो ये पहली वर्ष है यानी उसको नापने के लिए कहा गया और पहली जो आयत है उसमें लिखा है कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, है ना। तो हमने ये सीखा था कि ये इबादत करने वाले उस वक्त कौन थे, यानी वो जो जिन पे खुदा की मोहर लगी हुई थी। जब ये नबियों ने आके हमने सीखा कि ये एलिया और हनूक हैं और इसकी वजह भी हमने ये देखी थी कि एलिया और यानी एलिया का तो हमें बाइबल बताती है, मलाइकी की किताब में हमें मिलता है ना, कि वो शरीयत यानी मूसा के ज़रिए जो खुदावंद ने दी थी, उन दिनों यानी लोग जो हैं उस पे अमल करेंगे और खुदा के हुक्मों पे अमल करेंगे। जो एलिया के ज़रिए कह लें, ये जो बाप का दिल है बेटे की तरफ, बेटे का दिल बाप की तरफ करेगा और ये खुदावंद को पुकारेंगे और खुदावंद इनकी सुनेगा, है ना। तो और दूसरे पे हमने सीखा था कि क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि मूसा है तो मूसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो उस बाइबल हमें ये बताती है कि वो मर गया है और अ, इसलिए जो हनूक है वो जिंदा आसमान पे उठाया गया था और ये हमने सीखा कि इब्रानियों के खत में हमने पढ़ा कि जो इंसान का यानी जो पैदा हुआ है उसका एक दफा मरना जरूर है ना। तो इसलिए हमने सीखा था कि जो हनूक है वो जिंदा आसमान पे उठाया गया था, तो इसलिए एलिया और हनूक आएँगे। और फिर ये भी हमने सीखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो दुल्हन है उसके बारे में भी तो कहा है बाइबल ने कि वो जिंदा आसमान पे उठाए जाएँगे, है ना? तो इसलिए फिर मूसा जो है वो आ सकता है क्योंकि वो भी जिंदा होके आ सकता है। लेकिन क्या कहते हैं, हमने सीखा कि हम जो फ़ज़ल के दौर के हैं या खुदा यीशु मसीह के उसकी मौत में हम शरीक हैं। मौत जो है खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर क्या कर दी थी? नेस्त कर दी थी या ख़त्म कर दी थी। इसलिए अब जो मसीह में हैं, हमने तो तीमुथियुस के खत में पढ़ा, वो क्या है? मसीह में सोते हैं। वो मरते नहीं हैं बल्कि सोते हैं। तो इसलिए हम पे जो जो खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं, उन पे ये असर जो है या मौत का या ये जो आयत है वो असर नहीं करती या उसका नहीं उसका रहता। तो इसलिए जो हनूक है और एलिया वो आएँगे और क्योंकि क्या कहते हैं, सबको एक दफ़ा मरना ज़रूर है, तो इसलिए हनूक जो है, वो ज़िंदा आसमान पे उठाया गया था, तो इसलिए वो वापस आएगा और फिर हमने सीखा कि ये इनको जो मुखालिफ़े मसीह है, जो अस्तहा है, वो दोनों को मार देगा और ये फिर 3.5 दिन के बाद ज़िंदा हो जाएँगे और आसमान पर उठाए जाएँगे, ये दोनों गवाह जो हैं, है ना? हमने ये सीखा और ये मसा किए हुए यानी ये और फिर हमने सीखा था कि ये यानी जो ज़मीन का खुदा है, उसके सामने खड़े होंगे। जिस तरह के कह लें कि जब मूसा और हारून फ़िरौन के सामने कह लें
के खड़े हुए थे और वो 10 आफ़तें जो आई थी, लेकिन वो फिर भी उसका दिल जो है वो सख्त ही रहा। इसी तरह ये उस वक़्त जो ज़मीन पे लोग होंगे, उनका दिल सख्त ही रहेगा, सिवाय उनके जो जिन पे मोहर लगी हुई है, और वो 1,44,000 जो हैं, वो खुदावंद की तरफ मुड़ेंगे। वो खुदावंद को जो कह लें सच्चे इस्राएली हैं, वो उस वक़्त खुदावंद की तरफ मुड़ेंगे, या और खुदावंद उनको सोने की तरह कह लेताएगा, और उनकी जो मैल है चाँदी की तरह साफ़ करेगा, और वो खुदावंद को पुकारेंगे और खुदावंद उनकी सुनेगा, है ना? और खुदावंद उनको कैसे बचाएगा, ये खुदावंद का अपना मंसूबा है ना? तो इसलिए वो लोग जो हैं बचाए जाएँगे, और उनको ये जो और फिर हमने ये भी सीखा था कि एलिय्याह और हनोक जो हैं वो क्यों क्योंकि हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने वालों में से पलोठा है या पहला फल है, तो इसी तरह दिल की शरीयत का, यानी जो हनोक है वो या कह लें जिंदा उठाए जाने वाला पहला फल है। तो इसी तरह शरीयत के दौर का जो है वो एलिय्याह है, और अब फजल के दौर के हम मसीही होंगे जो जिंदा आसमान पे उठाए जाएंगे, है ना? तो इसलिए भी ये 3 दौर हैं, जैसे कह लें बाइबल हमें बताती है, यानी एक ज़मीर कह लें या दिल की शरीयत का दौर, एक शरीयत का दौर, और अब जो है वो फजल के दौर में से हम गुज़र रहे हैं, है ना? तो इसलिए तीनों में से जैसे कह लें जो पहले फल हैं वो होने जो हैं या उठाए जाने वो ज़रूर हैं। तो इसलिए पहला फल जो है हनोक दिल की शरीयत या ज़मीर की शरीयत का, और शरीयत की दौर का एलिय्याह है। तो इनका आना इसलिए भी कह लें कि अ, बनता है कि अगर मूसा और एलिय्याह हों तो वो दोनों शरीयत के दौर के खुदावंद के मुकद्दस लोग हैं, पवित्र लोग हैं, पाक लोग हैं, है ना? तो इसलिए दिल की शरीयत का भी जो एक कह लें एक जो फल है, जो या ज़मीन पे आना उस वक़्त ज़रूरी है, क्योंकि उस वक़्त 2 किस्म के कह लें लोग होंगे। एक तो हमने ये सीखा कि ये जो आयत हमने कौन-सी पढ़ी थी? जिसमें हमें मिलता है कि वो उस वक़्त क्या है जो गुनाहगार लोग हैं या जिन्होंने छाप ले ली होगी, वो लोग ज़मीन पे होंगे, और दूसरे जो इस्राएली जिनके माथे पे खुदावंद की मोहर लगी, सील जो है वो लगी, और जो शरीयत के दौर के हैं। तो इसलिए उस वक़्त जो ज़मीन पे कह लें कि वो लोग होंगे जो कह लें किसी को भी यानी दिल की एक कह लें कि मानते हैं, या दिल के या ज़मीर के अपने मानते हैं, उस किस्म के लोग जो हैं वो ज़मीन पे होंगे, और दूसरे जो होंगे वो शरीयत को जो मानते हैं, जो मूसा के ज़रिए खुदा उनकी शरीयत जो मिली थी, उस पे अमल करने वाले लोग हैं। इसीलिए वो वापस जो शरीयत पे अमल करने वाले हैं, जो मलाइकी की किताब में हमने वो वर्ड्स पढ़ी कि उनका दिल फिर फिरेगा, खुदावंद फेरेगा, और फिर से वो खुदावंद की जो शरीयत है, उस पे अमल करेंगे, है ना? तो इसलिए जो दिल की शरीयत कह लें लोग होंगे, वो होंगे जो अपने ही दिल की मनमानी करते हैं, है ना? दिल की मर्ज़ियाँ करते हैं लोग, वो लोग होंगे ज़मीन पे उस वक़्त, और जो शरीयत को मानते हैं, वो लोग होंगे। इसलिए जो एलिय्याह है वो उनके लिए कह लें हम कह सकते हैं, और जो हनोक है, वो जो अपने दिल की मर्ज़ी पे चलते हैं, जो कुछ उनको ठीक लगता है वही करते हैं, है ना? या इस तरह कह सकते हैं। तो इसलिए भी हनोक और एलिय्याह हो सकते हैं, और तो ये दोनों आएँगे, और लेकिन ये क्या है क्योंकि जो गुनाहगार लोग होंगे उस वक़्त ज़मीन पे, जैसा हमने ये मेरा ख़्याल है कौन-सी वर्स है, कि लोग जो हैं इनसे बड़े तंग होंगे, क्योंकि ये क्या करते थे दोनों ज़मीन पे आग बरसाते थे, और जो ज़मीन के रहने वाले हैं उनको तंग करते थे, यानी उनके हिसाब से कह लें कि हाँ, ये उम्मतों को, कबीलों को, अहले ज़मीन के लोगों को इनके मुँह से आग निकलना शुरू हो जाती थी, है ना? जब ये तो इसलिए लोग जो हैं इनसे तंग होंगे, ले इसलिए जब उनको उसने मारा जो
अथाह गढ़े से कह लें जो असहा निकला, या पुराना वही सांप या वही शैतान, तो वो उन पे गालिब आया, यानी इनको मार दिया। तो लोग जो थे वो बड़े खुश हो रहे थे, वो खुशियाँ मना रहे थे, है ना? तो इसलिए लोग जो हैं वो खुश हो रहे थे, क्योंकि जो अपनी मनमानियाँ करते हैं या जो बुत परस्ती में, वो नहीं चाहते, वो खुदा उनकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, या इसलिए जब उन्हें कोई क्या कहते हैं, मना करता है या बताता है कि खुदा उनकी तरफ चलो, या खुदा उनके हुक्मों को मानो, कि अदालत जो है होने वाली है, जो जजमेंट है वो होने वाली है, तो लोग जो हैं वो नहीं मानते, है ना? जिस तरह के कह लें जब फ़िरौन था या उस मिस्री थे, उन्होंने खुदावंद को इतनी आफ़तें आई, लेकिन खुदावंद को उन्होंने नहीं माना, खुदावंद को उन्होंने कबूल नहीं किया, उनका दिल सख्त ही रहा। तो इसी तरह इस दौर के भी जो लोग होंगे, उस मुसीबत के दौर के, उस रोज़े अज़ीम जो खुदावंद का है, जब ज़मीन पे होगा, आफ़तें आएँगी, सज़ाएँ आएँगी, लेकिन उनके दिल जो हैं, वो सख्त ही रहेंगे, है ना? वो तौबा नहीं करेंगे, जैसा हमने पीछे सीखा जब दूसरा अफ़सोस हुआ, तो जो चाँदी, पीतल और पत्थर की, लकड़ी की जो पूजा करते थे मूर्तियों की, और जो खूनी थे, जादूगरी में थे, हरामकारी में, चोरी में थे, उनके दिल सख्त ही रहे, उन्होंने तौबा नहीं की, है ना? लेकिन ये जो जिन पे मोहर लगी हुई थी, इन्होंने खुदावंद की तरफ इनका जो दिल था मुड़ा, और इन्होंने खुदावंद को पुकारा, और खुदावंद ने उनकी सुनी, क्योंकि ये हमने सीखा कि जो इबादत करने वाले थे, तो इसलिए उस वक़्त जो है, और फिर ये भी हमने देखा कि यानी ये पाक मकाम है और पाक तरीन मकाम, उसके जो गिर्द खुदावंद ने आछी जो दीवार थी, वो खड़ी की थी। खुदावंद ने यानी ये ज़ाहिर किया कि ये मेरी मलकियत है, इनको नुकसान ना पहुँचे, इनको कोई ना छेड़े। यानी वो जो पाक मकाम में लोग इबादत करने वाले हैं, तो वो हमने सीखा कि ये पुराने अहद-नामे के जो मुक़द्दसीन हैं, जहाँ बख़ूर जलाया जाता था, है ना? तो ये लोग जो हैं, जिन पे मोहर लगी थी, जो इबादत करने वाले हैं, वो महफूज़ रहेंगे। खुदावंद उनको बचाएगा, और उनके दिल जो हैं तब्दील होंगे, और वो अ, जो खुदावंद की शरीयत है, उस पे अमल करेंगे, है ना? और जो बाहर सहन है, खुदावंद ने उसको कहा कि उसको तू ना नाप, इसको मैंने गैर कौमों को दे दिया है कि वो इसको क्या करें, यानी पामाल करें, उसकी बेरहरमती करें। तो इसलिए जो सहन है, हमने देखा कि वो गैर कौमों को दे दिया गया था, है ना? कि वो ये जो है यहाँ जहाँ बख़ूर जलाया जाता था, यानी यहाँ पुराने अहदनामे के जो मुक़द्दसीन हैं, जो जो जिन पे मोहर लगी होगी, वो यहाँ पे, क्योंकि ये वो जगह है, वो कुर्बानगाह है, जो पर्दे के आगे होती थी। तो यहाँ पे इबादत कह लें, अब हम भी जो कह लें, हमारी दुआएँ जो हैं, वो यहाँ तक इसीलिए लिखा है कि हमारी जो दुआएँ बख़ूर की मानिंद, खुशबू की मानिंद, या धुएँ की मानिंद खुदावंद तक पहुँचती हैं। तो यहाँ पे बख़ूर जलाया जाता था, और यहाँ पे पुराने अहदनामे के जो मुक़द्दसीन हैं, जो पहली आयत में है, इबादत करने वाले लोग, तो खुदावंद ने उनको महफूज़ रखा। और ये वाली जो जगह है, यानी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये में है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर है, जो उस दिन हमने देखा था, कि ये जो है, ये अंदर का हिस्सा है, यानी पाक तरीन मकाम और पाक मकान। तो ये खुदावंद ने इसके चौगिर्द जो है, वो कह लें दीवारें आछी खड़ी कर दी, लेकिन जो सहन है, जहाँ ये कह लें कुर्बानगाह हमें नज़र आ रही है, ये जगह खुदावंद ने क्या कहा कि मैंने गैर कौमों को दे दी है। ये यहाँ पे जहाँ आपको शायद लोग नज़र आ रहे हों, है ना? ये वाली जगह जो है, जो बाहर का सारा सहन है, ये गैर कौमों को दे दिया कि वो इसको क्या करें, हुरमत करें, या कह लें नापाक करें, गंदा करें, है ना? लेकिन जो अंदर का ये 2 मकाम है, वो खुदावंद ने उसके चौगिर्द दीवारें खड़ी कर दी, आछी दीवारें खड़ी कर दी, ये हमने उस दिन
सीखा था, है ना, थोड़ा-थोड़ा करके। तो यानी 2 गवाह फिर हमने देखा कि वो 3.5 दिन तक पड़े रहे और पूरी दुनिया में उनको उनकी लाशें जो थी वो देखेंगी, और हमें पता है अब यानी कि वो टीवी के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए वो पूरी दुनिया जो है उनकी लाशों को देखेगी। और जब वो ज़िंदा हो जाएँगे मौज़ाना तरीके से और खुदावंद उनको ऊपर उठा लेंगे। लिखा है ना कि वो उठा लिए गए, बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। यानी वो जब ज़िंदा आसमान पे उठाए जाएँगे, तो हर नज़र उनको देख रही होगी, यानी ये छुप के नहीं होगा, हर नज़र उनको देख रही होगी, ये जो मेरा 12 और 13 आयत में है ना। तो उस वक़्त क्या है, ज़लज़ला आएगा, भूचाल जो है वो आएगा और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया और उस भूचाल से 7,000 आदमी मर गए और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की, है ना? तो ये बाकी लोग जो बच गए थे, हमने सीखा महल ज़करिया की किताब में, है ना? कि ये कौन लोग हैं जो 1/3 बच गए थे, यानी वो वही जो खुदावंद के लोग हैं, इबादत करने वाले लोग हैं, है ना? तो 2 गवाह जो थे, कह लें कि उनकी जो मनादी थी या उनकी जो खिदमत थी उस वक़्त ज़मीन पे, वो आए और उन्होंने अपनी उसको खिदमत को किया और खुदावंद ने उनको ज़िंदा आसमान पे उठा लिया। यानी उनको मारा गया और उनको फिर खुदावंद ने ज़िंदा किया और आसमान पर वो उठाए गए, है ना? तो इसलिए 2 गवाह ये हैं। तो आज हम थोड़ा-सा सीखेंगे कि जो 7वां नरसिंगा है, यानी 2 अफ़सोस जो हैं हो गए हैं, अब तीसरा जो अफ़सोस है वो होने वाला है, यानी जल्द होने वाला है। और 7वां जो नरसिंगा है वो फूँका जाने वाला है। और इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो खुदावंद है, खुदावंद यीशु मसीह वो क्या है, वो आएँगे और जब 7वां नरसिंगा जो है फूँका जाएगा और यानी जो तीसरा अफ़सोस होगा, तो ये कह लें कि ये वो पीरियड या वो दौर जो है वो शुरू हो गया जब हर मज़लूम की जो जंग है या लड़ाई जो है, उसकी तरफ कह लें ये चल रहे हैं, है ना? तो ये हम देखते हैं, एक हवाला पढ़ते हैं योएल नबी की जो किताब है उसका तीसरा बाब और उसकी 9 से 11 आयत तक, है ना? जिसमें हमें इस जंग के बारे में पता चलता है और फिर आगे हम पढ़ेंगे महल। हाँ जी, पहले पढ़ें योएल की किताब उसका 3 बाब और 9 आयत से। जी, अंजना और पापा। चैप्टर कौन सा बताया आपने? तीसरा बाब उसकी 9 आयत से हम पढ़ते हैं, जिसमें हाँ जी, बोलो। जरा मुझे बताओगे ये किसके बाद है? डैनियल के बाद है वफा, मेरा होसाया हुशाया दे बाद बाबा जी। हाँ जी, डैनियल के बाद हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हुशाया दे बाद। हाँ जी। जी, पढ़ा आज 9 हाँ, वर्स। हाँ जी, हाँ जी। ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰੋ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੂਰਬੀਰ ਹਾਂ। ਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮੋ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਤੀ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ। ਆਓ ਮਿੱਧੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪੱਚਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਟੀ ਉਛਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਬੇੜੇ ਦੀ
ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ, ਬੇੜੇ ਦੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਸਿਯੋਨ ਤੋਂ ਗਰਜੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣਗੇ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਊਠ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ? तीन हाँ जी, चैप्टर नहीं है ये, योएल कौन से चैप्टर? योएल अच्छा न- योएल। मैंने योएल कहा होसाया। नो 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 ठीक। योएल 3 बाप उसकी 9 आयत से आप आखिर तक पढ़ लें, जिससे ठीक हो हमें गया। थोड़ा। कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को बरअंगेख्ता करो। जंगी जवान हाजिर हों, वो चढ़ाई करें। अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसुओं को पीट कर भाले। कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूँ। ए इर्द गिर्द की सब कौमों, जल्द आकर जमा हो जाओ। ए खुदावंद अपने बहादुरों को वहां भेज दे। कौमें बरअंगेख्ता हों और यहूसफत की वादी में आए, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है, और रौंदो, क्योंकि हौज लबालब और कोहलू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। ग्रोह पर ग्रोह इनफसाल की वादी में है, क्योंकि खुदावंद का दिन इनफसाल की वादी में आ पहुंचा। सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद सिय्योन से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा, और आसमान और जमीन कांपेंगे। लेकिन खुदावंद अपने लोगों की पनाहगाह और बनी इसराइल का किला है। बस तुम जानोगे मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जो सिय्योन में अपने कोहे मुकद्दस पर रहता हूँ। तब यरूशलेम भी मुकद्दस होगा और फिर उसमें किसी अजनबी का गुजर ना होगा। और उस रोज पहाड़ों पर से नई मै टपकेगी और टीलों पर से दूध बहेगा, और यहूदा की सब नदियों में पानी जारी होगा। और खुदावंद के घर से एक चश्मा फूट निकलेगा और वादी शतीम को सैराब करेगा। मिस्र वीराना होगा और अदूम सुनसान बियाबान, क्योंकि उन्होंने बनी यहूदा पर जुल्म किया और उनके मुल्क में बेगुनाहों का खून बहाया। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था, क्योंकि खुदावंद सिय्योन में सुकूनत पजीर है। आमीन। आमीन हालेलुया। तो ये जो नरसिंगा है यानी फूंका जाएगा, मनादी जो है वो होगी। हमें सीखा है ना कि ये जब नरसिंगा है लड़ाई के लिए या जमा करने के लिए या कूच करने के लिए है ना बोला फूंका जाता था। तो अब भी जो खुदावंद का जो दिन है या जंग का जो है हर मजदूर की जो लड़ाई है उसका टाइम जो है आ गया है या अदालत का जो वक्त है वो आ गया है। तो इसलिए जो 7वां नरसिंगा जब फूंका जाएगा तो इसमें कह लें कि ये जंग की तैयारी है या लड़ाई की कह लें तैयारी है, क्योंकि जंग इस तरह लड़ाई इसको इसे कि ये जमा होंगे लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और इस लिखा है कि मुंह की तलवार से खुदावंद जो है इन पे गलबा पाएगा, है ना? तो इसलिए ये तैयार तो होंगे लेकिन खुदावंद एक और हवाला हम पढ़ते हैं इसी का कह लें ज़करिया की किताब उसका 14 बाब 14 और 14 मेरा हाल पहली आयत से पढ़ लेते हैं 3 आयत से 14 बाब ज़करिया की किताब हाँ जी 14 बाब वर्स फर्स्ट तो कितने तक फर्स्ट से पढ़ लें। हाँ ठीक है 3 और 4 ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੁੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੀਵਿਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਸਰਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੱਠੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਾੜ ਦੀ ਦੂਣ ਆਸਲ ਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਜੀਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠੇ ਸਨ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ तेरे नाल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, आगे भी पढ़ लें। ये अच्छा। सारा कह लें उसी का खुदावंद बात कर रहा है, जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा और नरसिंगा फूंका जाएगा, यानी ये 7वां नरसिंगा जाए। जी पढ़ें। हाँ जी। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧੀਮੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਤ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਬਾ ਤੋਂ ਰਿਮੋਨ ਤੀਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਰਬਾ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੋਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੀਕ, ਹਨੇਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਚੁਬੱਚਿਆਂ ਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ। ਉਹ ਅਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਗਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਸਤਰ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਇਸ ਅਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਅਜਾਬ ਘੋੜਿਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਊਠਾਂ, ਗਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਆਂ ਸਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਾਲ ਬਸਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਟੱਬਰ ਨਾ ਚੜੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜਾਬ ਵੇਖ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ। ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇਗ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਫਿਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी बाबा, ये हर मजदून की जंग कह लें या लड़ाई कह लें, है ना, ये उस वक्त जो होगा या उसके बाद जो होगा, यानी हजार साल बादशाही शुरू होगी, उसके बारे में ये पूरा कह लें चैप्टर हमें मिलता है। हाँ जी बाबा, हर मजदून की जंग। देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा लेकिन बाकी लोग शहर में ही रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जिसे जंग दिन के लड़खड़ाता था, और उस रोज वो कोहे जैतून पर यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा
अज़रिया के अयाम में जलजला से भागे थे उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद को ही मालूम है। वो ना दिन होगा और ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरिब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जब्बा से रमून तक मैदान की मानिद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा। और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मकाम यानी कोने के फाटक तक और हनपेल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौजों तक अपने मकाम पर आबाद होगा। और लोग इसमें सुकूनत करेंगे और फिर लानत मतलब ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमन और अमान से आबाद रहेगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाजल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म जानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज खुदावंद की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएगा। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा। और घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उसका लश्कर गाहों में होंगे वही अजाब नाजिल होगा। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल अफ़ाज को सजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफ़ाज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मीना बरसेगा। और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगी। अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं, यही सजा होगी। उस रोज घोड़ों और घंटियों पर मरकूम होगा। खुदावंद के लिए मुकद्दस और खुदावंद के घर की देगें मज़बा के प्यालों की मानिद मुकद्दस होंगी, बल्कि यरूशलेम और यहूदा में कि सब देगें रब्बुल अफ़ाज के लिए मुकद्दस होंगी। सब ज़बिये गुजराने वाले आएंगे और उनको लेकर उनमें पकाएंगे। और उस रोज फिर कोई कनानी रब्बुल अफ़ाज के घर ना होगा। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो काफी खुदा के बंदा ने एक किस्म का कह लें वाज़ेह सब कुछ बताया कि लड़ाई होगी। खुदा का जो दिन है यानी जो रोज़े अज़ीम जिसका हमने सीखा कि 3.5 साल का जो अरसा है जिसमें खुदावंद का जो गज़ब है इसराइली कौम पे या जो शहर है यरूशलेम उस पे नाज़िल होगा, पूरी दुनिया पे होगा। लेकिन खुदावंद का बंदा ये जो है देखिए कितनी मैं कहूँगी कि डिटेल से हमें बताया है कि शहर जो है जब खुदावंद यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ पर कदम रखेंगे तो जो पहाड़ है 2 हिस्सों में तक़सीम हो जाएगा, है ना? और खुदावंद का बंदा जो है जब आएगा तो उस वक़्त लड़ाई का कह लें या हमने पीछे भी सीखा कि जो एंटी क्राइस्ट है उसका भी यहूदियों के ऊपर कह लें और जो दूसरी कौमें हैं उनके ऊपर भी एक किस्म का उसका जो है ज़ुल्म सितम वो कर रहा होगा। और खुदावंद जो है उसके भी जैसे सूरज तारीक हो गया, उसने घास जो थी वो देखा जल गई, समुंदर का पानी जो था वो खून बन गया और उसमें जो कुछ जहरीला हो गया है ना, यानी सारा कुछ देखा। और फिर ये लड़ाई के माहौल में ये देखा कि जी औरतें बेरहरमत हो रही हैं, लोग जो हैं सीरी में चले गए हैं। उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा होगा और ये जब 7वां नरसिंगा फूंका गया यानी कह लें कि जो तीसरा अफसोस है
जो ज़मीन पे है होने वाला है। जब ये 7वां नरसिंगा फूँका गया तो जो तीसरा अफ़सोस है वो हुआ, यानी जो लड़ाई है या जंग जो है हरमज़दून की, वो हुई और खुदावंद जो है उस वक़्त कह लें कि ज़मीन पे उतर आया और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों की तरफ से होके जंग की। जैसे लिखा है कि जैसे जंग के ज़माने में यानी जंग के दिन में लड़ा करता था, यानी खुदावंद हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब खुदावंद ख़ुरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा, जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। तो खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त आएँगे, ज़ैतून के पहाड़ पे कदम रखेंगे, हर मज़दून की जंग पे खुदावंद यीशु मसीह आएँगे, है ना? और अपने लोगों की तरफ से होके लड़ेंगे, यानी जो कह लें कि उस वक़्त यरूशलेम को फ़ौजों ने घेरा होगा, यानी एंटी क्राइस्ट जो कह लें, और उसके साथ जो आगे चल के हम देखेंगे कि वो जो बादशाह थे, वो मिल गए थे, है ना? यानी गैर कौमें जो थीं, उन सब ने क्या किया था, यरूशलेम को घेरा हुआ था। तो उस वक़्त खुदावंद जो है, जो आएँगे और कुदसी जो हैं, उसके साथ होंगे, यानी खुदावंद के पाक लोग, ओवरकमर जो हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, वो उसके साथ होगी और वो भी क्या करेगी, जंग करेगी। तो इसलिए ये जो है हर मज़दून जब 7वां नरसिंगा फूँका जाएगा, तो हर मज़दून की जंग होगी और तीसरा अफ़सोस जो है होगा और खुदावंद की बादशाही जो है ज़मीन पर कह लें शुरू होगी और मेरा ख़्याल ये 19 चैप्टर में हमें मिलता है, मुकाशवा 19 बाब उसकी 11 और 20 आयत में कि उस वक़्त सफ़ेद घोड़ों पर सवार जो हैं आसमान से फ़ौजें आएँगी, यानी ये ओवरकमर हैं, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है और मेरा पढ़ ही लेते हैं, जिसमें यानी जो झूठा नबी है और जो क्या मुखालिफ़े मसीह है, उसको आग की झील में डाला जाएगा। वैसे ही आगे चल के भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वफ़ा और रंजना आप निकालना मुकाशवा 19 चैप्टर है, उसकी 11 और 11 से 20 आयत। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੁਪੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ बस ਉਹਨਾਂ ठीक है। ਸਭਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ सॉरी हाँ ठीक जी, है सॉरी। हाँ जी, बस यही हमने देखना था कि यानी जब ये तीसरा नरसिंगा फूँका सॉरी 7वां नरसिंगा फूँका जाएगा और यानी दुनिया पे कह लें अदालत उसकी खुदावंद की होगी और तीसरा अफ़सोस होगा और उस वक़्त जो है यानी खुदावंद जो है दुश्मन की फ़ौजों ने यरूशलेम को घेरा होगा शहर को, तो उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह आएँगे अपने और खून छिड़की हुई पोशाक जो है खुदावंद यीशु मसीह ने पहनी होगी और मुँह की तलवार से वो क्या करेंगे, उन कौमों को मारेंगे, है ना? और उसके साथ होगी सफ़ेद साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए जो हैं लोग और हमने ये सीखा था कि ये कौन लोग हैं। ये 19 चैप्टर के ही ऊपर आयत है उससे हमें मिलता है कि ये दुल्हन ने जो लिबास है पहना हुआ है। इसलिए ये फौजें कौन है, ये लश्कर कौन है, जो खुदावंद के लोग हैं। जैसे कि हम अब सबको ही पता है कि हमारी ग्रुप का क्या नाम है, टेरेबल आर्मी विद बैनर्स, यानी खुदावंद यीशु मसीह की आर्मी या खुदावंद यीशु मसीह का लश्कर ये
गज़ल व गज़लात में भी इसका ज़िक्र है और 60 जो ज़बूर है उसमें भी इसका ज़िक्र है लश्कर का। और वो लश्कर कौन है? हम यानी खुदावंद की फ़ौज, इसीलिए हमें सिपाही भी कहा गया है ना? तो इसलिए हम क्या हैं? फ़ौजें हैं। खुदावंद यीशु मसीह की फ़ौजें हैं या लश्कर हैं, आर्मी हैं। तो इसलिए हमें जो जंग है करना ज़रूर है, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ आके क्या करनी है? उस वक़्त जंग करनी है ज़मीन पे और सफ़ेद घोड़ों पे सवार होंगे, है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये खून में छिड़की हुई जो पोशाक है, वो पहनी होगी। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है। ज़मीन पे खुदावंद यीशु मसीह जो ज़ैतून का पहाड़ है, खुदावंद यीशु मसीह उस पे कदम रखेंगे। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी ज़मीन पे आमद है। यानी पहली आमद क्या थी? जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे और वो ज़मीन पे रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी थी। और दूसरी आमद जो है यानी ज़मीन पे, वो तब होगी जब ज़ैतून के पहाड़ पे वो कदम रखेंगे। इसलिए ये दूसरी आमद है, यानी जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कह लें खून छिड़की हुई पोशाक जो है वो पहनी होगी, कपड़े जो हैं वो पहने होंगे, है ना? तो इसलिए ये है वो जब बादशाही करने के लिए आएगा, है ना? और दुश्मन को क्या करेगा? हराएगा। इसलिए ये थोड़ा रैप्चर यानी जो खुदावंद यीशु मसीह के दुल्हन को जब उसने लेने आना है ज़िंदा आसमान पे उठाए जाएँगे, उसमें और इसमें गले कपड़ों का भी फ़र्क है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बादलों पे आना है, यानी बादल पे आना है, बदली पे आना है और खुदावंद यीशु मसीह कह लें कि आएँगे और अपने लोगों को यानी हवा में उड़कर हमने जाना है। हमने हवा में उड़कर जाना है खुदावंद यीशु मसीह के साथ। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पे कदम नहीं रखना, है ना? लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है, सेकंड कमिंग है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पे कदम रखेंगे और उस वक़्त ये खुदावंद यीशु मसीह ने कपड़े पहने होंगे। यानी उस वक़्त सफ़ेद पोशाक नहीं पहनी होगी, खून छिड़की हुई जो पोशाक है, वो पहनी होगी। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं इसको मिक्स करते हैं रैप्चर को और खुदावंद यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है ना? कि खुदावंद यीशु मसीह ने घोड़ों पे आना है, घोड़ों पे तब आना है जब खुदावंद यीशु मसीह जंग करने आएँगे और ज़मीन पे कदम रखेंगे, यानी ज़ैतून के पहाड़ पे, जो भी हमने ज़करिया की किताब में पढ़ा है ना? लेकिन जब रैप्चर होगा, ज़िंदा आसमान पे दुल्हन उठाई जाएगी, तो खुदावंद यीशु मसीह बादल पे आएँगे और खुदावंद ने सफ़ेद जो क्या है लिबास जो है वो पहना होगा, है ना? तो यानी खुदावंद जो है एक बादशाह की सूरत में आएँगे, जो अभी हमने पढ़ा क्या बादशाहों का बादशाह उसकी रान पे लिखा होगा, है ना? खुदावंदों का खुदा। तो उस वक़्त जब आएँगे ज़मीन पे खुदावंद और हर आँख उसको देखेगी, जिन्होंने उसको छेदा था और उस वक़्त जो है खुदावंद यीशु मसीह को हर आँख जो है देखेगी और वो ज़मीन पे आएँगे और कह लें कि बादशाही करेंगे और ओह! अच्छा वो आयत नहीं मिली कि जब हाँ जी, 19 सॉरी हाँ, अंजना इससे आगे भी पढ़ना वफ़ा जो क्या कहते हैं कि झूठे नबी को और हैवान को आग की झील में डालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 19 आयत से पढ़ना। 19 बाब उसकी 19 आयत। ओके। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਵੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾंस ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਏ ਆਮੀਨ आमीन। आमीन जी। हाँ जी, पापा पढ़े। फिर मैंने उस हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा
और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सैर हो गए। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो ये जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो ये सारा कुछ जो है ये होगा, यानी खुदा यीशु मसीह आएंगे, जंग होगी, और जो हैवान है यानी वही मुखालफे मसीह, एंटी क्राइस्ट, और जो झूठा नबी है उसको आग की झील में डाला जाएगा, और जो शैतान है उसको 1000 साल के लिए पकड़ के बंद कर दिया जाएगा, है ना। तो ये सारे जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो ये तब सब कुछ होगा, है ना। और खुदावंद यीशु मसीह जो है आएंगे। बाकी की जो महल हमारी फिर आज वो रह गई है वो हम मंडे को करेंगे, है ना। जो क्योंकि उस पे भी थोड़ा सा जो मकदस जो है आसमान पे खुलेगा, और यानी 18 और 19 आयत जो है ना, बल्कि 16-17, है ना। तो उस पे हम फिर बात करेंगे, है ना। तो ये 7वां नरसिंगा जो है या तीसरा अफसोस जो है, ये हर मजदूर की जंग होगी, अदालत होगी जो जमीन पे रहने वाले हैं उनकी, और जो खुदावंद है वो अपनी फौजों के साथ जमीन पे आएंगे, है ना। तो इसलिए उस वक्त जो है जो जो 3.5 साल का जो अरसा है उसका पीरियड जो है कह लें, वो जो खुदावंद का रोज़े अजीम है जिसको कहा गया है, खुदावंद का दिन उसको कहा गया है, या खुदावंद के गजब का कहर का दिन भी इसको कहा गया है, बड़ी मुसीबत उसको कहा गया है ना। तो वो दौर जो है कह लें कि उस वक्त जब 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा और वो जब अफसोस होगा, जंग होगी हर मजदूर की तो वो दौर खत्म होगा, और उसके बाद ही जैसे कह लें अभी जो जिक्रिया में हमने पढ़ा 14 बाब में कि फिर 1000 साल जो है वो बादशाही खुदावंद यीशु मसीह की जमीन पे शुरू होगी। तो इसलिए हमारी जो कह लें जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो दुल्हन की तैयारी है वो उसमें दाखिल होने की है, जो 1000 साल बादशाही है। आगे चल के हम इसको 20 चैप्टर में है ना, यानी पहली क़यामत और दूसरी क़यामत। ये पहली जो कह लें क़यामत है जो यानी ये 3.5 साल का अरसा खत्म होगा, और जब 1000 साल बादशाही शुरू होगी तो इसको पहली क़यामत भी कहा गया है ना। तो इसलिए इसके आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये हमारा चैप्टर जो है 11 चैप्टर जो है हम इस पे फिर बात करेंगे, है ना। तो इसलिए हम जो तैयारी कर रहे हैं उस 1000 साल बादशाही में दाखिल होने की तैयारी करें। हमने उस पहली क़यामत में जैसे कहलें शरीक होना है, इसलिए जब पहली उसमें शामिल हो जाएँगे हम, तो फिर जो दूसरी क़यामत है जो 20 चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि उन पे फिर दूसरी क़यामत का कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए हमने उस पहली जो क़यामत है कह लें कि उसमें शरीक होना है, यानी 1000 साल बादशाही में शरीक होना है। और हमने सीखा था कि अ, जो जो शहीद होंगे सारे, वो भी उस बादशाही में शरीक होंगे। कल हम इस पे कल तो फ्राइडे है ना, मंडे को इस पे बात करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं जो मुझे खुदावंद ने बोझ दिया और मुझे जो वर्ष दी थी जब खुदावंद ने ये कह लें ग्रुप शुरू करने के लिए कह लें कहा गया है, मैं वो आयत फिर से पढ़ना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मुझे सहून और यरूशलेम के लिए बोझ दिया है। वफ़ा आप निकालना, मेरा ख़्याल है वो यसाया, एक दफ़ा वफ़ा आपको भी खुदावंद ने यही वर्स जो थी मेरे लिए दी थी और ये खुदावंद ने मुझे भी ये ग्रुप के लिए यही वर्स दी थी,
ये साया 40 बाब है मेरा ख्याल है, जिसमें लिखा है कि खुशखबरी सुना। वफा आपको शायद याद हो, है ना? ये साया 40 बाब है मेरा ख्याल है। यस, वफा है हमारे साथ? जी जी, तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। जिसमें कहा कि तू खुशखबरी सुना यरूशलेम और सहून को। हाँ ठीक है, ओके, 9 आयत से है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ यशायाह नबी की किताब उसका 40 बाब 9 आयत से, ऐ सहून को खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम इशारत देने वाली जोर से अपनी आवाज बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा, देखो खुदावंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा, और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो इसका सिला इसके साथ है, और इसका अजर इसके सामने। वो चौपान की मानिंद अपना गला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेगा। हाँ किसने जी, बस समुंदर, बस थैंक यू। ओके, हाँ जी, बस जो 9 आयत है ना, वो ही जैसे कह लें, मैंने इस पे डेट भी लिखी हुई है। ओके, मुझे मिली थी 20 में 2020 में। तो 4 तारीख और 6 महीना, तो मैंने ये खुदावंद ने मुझे दी थी जब ये ग्रुप जो था शुरू करना था। तो इससे ऊपर वाली आयत भी दी थी, जो पुकारने वाली की आवाज है वो तब दी थी जब मैंने, शायद आप लोग कुछ लोगों को नहीं पता कि इससे पहले भी मैंने ग्रुप बनाने से पहले खुदावंद ने मुझे बोझ दिया था कि मैं वीडियो बना के जो है वो यूट्यूब पे डाली थी स्टडी जो है। और फिर खुदावंद ने मुझे ये ग्रुप के लिए कहा। तो ये वाली जो थी एक वर्ष जो थी, और भी थी लेकिन ये वाली, तो खुदावंद ने मुझे बोझ दिया है कि मैं सहून के लिए लोगों को कह लें तैयार करने की जो है स्टडी देती। इसीलिए कुछ जो नए मैं कहूँगी कि आने वाले हैं, उनको कुछ बातों की कह लें समझ अभी नहीं लग रही। और तो मुझे शुरू में थोड़ा-सा हुआ था, लेकिन फिर मुझे अ, मेरी बेटी ने भी कहा, बड़ी वाली रिचल ने, और सुरैया ने भी मुझे यही कहा, अगर शायद सुरैया को याद हो, कि आप बताओगे तो किसी को पता चलेगा। अभी समझ नहीं भी आ रही तो आप बताना शुरू करो। जिनको नहीं पता फिर उनको पता चल जाएगा। तो इसलिए काफ़ी ऐसी बातें हैं, या कह लें जो आपने नहीं सुनी होंगी या आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन आपको कोई बताएगा तो आपको समझ लगेगी। तो ये जो है मेरा बोझ है कि सहून के लिए खुदावंद का जहाँ पे तख्त है, वहाँ पे जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, या यरूशलेम में जाने की तैयारी हो रही है। जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया कि जहाँ मैं हूँ, वहाँ तुम भी हो। यानी और खुदावंद यीशु मसीह हम सबको पता है कि कहाँ पे हैं। खुदावंद के साथ बैठे हैं दाहिनी तरफ, जहाँ खुदावंद का तख्त लगा हुआ है ना? तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी उस जगह के लिए बुलाया है। तो लेकिन हमें कोई इस तरह कह लें, मैं कहूँगी कि वाज़िया तौर पे बताता नहीं, समझाता नहीं है कि उसकी तैयारी जो है आम मसीहियों से मुख्तलिफ है। आम मसीहियों से ज़्यादा मैं कहूँगी कि हमें अ तैयारी जो है वो करनी पड़ती है, यानी और ज़्यादा पाकीज़गी में, क्योंकि पाक तरीन मकाम है, होलीनेस जो कह लें। एक तो होता है पाक, एक पाक तरीन या कामिल या कामलियत या पाक तरीन। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे खुदावंद ने ये बोझ दिया है। इसलिए एक-एक गलती को, एक-एक नुक्ते को, या एक-एक उसको मिटाना यीशु के लहू से, या इतनी पाकीज़गी से चलना, मैं ज़्यादा उस पे इसलिए ज़ोर देती हूँ, क्योंकि आम मसीही जो हैं, जैसे कह लें कि उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि इतनी पाकीज़गी में चलें। लेकिन जिन्होंने सहून की तरफ जाना है, जिन्होंने यरूशलेम की तरफ जाना है, उनको फिर पाक बनना पड़ेगा। उनको जिस तरह हनोक जो था, वो लिखा है कि खुदावंद के साथ-साथ चलता रहा और खुदावंद ने उसे
उठा लिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम आज खुदावंद पाक रूह की आवाज़ को सुनते हैं, उस पे अमल करते हैं, रोज़-रोज़ उसके साथ चलते हैं, तब हम तैयारी जो है वो कर रहे हैं। नहीं तो हम पीछे रह जाने वाली कलीसिया में शामिल होंगे, है ना? तो इसलिए आप ज़रूर कह लें मेरी इस जो खुदावंद ने मुझे रोया दी है उसमें सब शरीक हों। कोशिश करें, बाकी मदद हमारी जो है वो खुदावंद करेगा। हम अपने तौर से, अपने ज़ोर से पाक साफ़ नहीं बन सकते, लेकिन हम जब इन 7 रूहों को जिनके बारे में हमने सीखा, जब इजाज़त देंगे उनको अपनी ज़िंदगी में काम करने के लिए, तो वो हमें पाक साफ़ बना देंगे, ठीक है? तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी फ़ज़ल दे, हम पे रहम करे, तरस खाए कि हमें उसे पाक तरीन मकाम में लेके जाए और उस पाक दामन कमवारी की मानिंद बनाए। ओवरकमर की तरह हम ज़िंदगी गुज़ारे, है ना? तो हम अपनी कोशिश से नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद हमें बना सकता है। बस हमने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करना है, खुदावंद पाक रूह के, है ना? तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तैयार करे और हम सब कोई भी हम में से पाक बन नहीं गया, हम सब कोशिश ही कर रहे हैं। यानी मैं अपना कहूँ, जावेद का या मेरे बच्चे जो हैं वो अभी कोई भी, क्योंकि जब हम तैयार हो जाएँगे तो खुदावंद हमें ले जाएगा। हम ज़मीन पे हैं अब तक, तो इसका मतलब है अभी तक हम तैयार नहीं हुए। हम में सब में कहीं न कहीं कोई न कोई खराबी जो है चल रही है। ये ना कहें कि बाजी शायद कह रही है तो बाजी बड़ी तैयार हो गई है ना? मैं तैयार नहीं हुई, अगर मैं जिस दिन तैयार होगी खुदावंद मुझे अपने पास ले जाएगा, है ना? तो इसलिए अभी सब में हम में कहीं न कहीं कोई खराबी चल रही है। तो लेकिन जितना भी टाइम है अपने आप को पेश करें। तो बैक टू सनिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खुदावंद आपको और ज़्यादा हिकमत से भरे और आप इसी तरह हमारे साथ पाक कलाम को शेयर करते रहे। प्रेज लॉर्ड। अब मैं लास्ट प्रेयर के लिए सिस्टर वफा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लास्ट प्रेयर में हमारी रहनुमाई करें। सिस्टर वफा। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी के लिए प्रेज स्पेशल प्रेयर तो नहीं करनी? किसी हाँ की जी, कोई प्रेयर? मेरे बेटे की आंख में ना उंगली लग के तो जख्म हो गया है, तो उसके लिए प्रेयर करना प्लीज। अरुण है ओके उसका नाम। मेरा नाम अमनदीप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू। और किसी के लिए प्रेयर करनी है? ओके, चले हम दुआ शुरू करते हैं। कुदूस 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 कुदूस, आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावन, जिंदा खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, क्योंकि तू सब सजदों के लायक खुदावंद है। तू हमारा खालिक और मालिक खुदावंद है खुदावन। एकता फरिश्तगान हर वक्त तेरे हुजूर रहता कुदूस कुदूस पुकारते रहते हैं, क्योंकि तू जलाली खुदा है। तू हमदो सताइश के लिए बना है खुदावन। एकता हम अपनी सारी एकता हमदो सजदा सताइश एकता जो भी हमारे हद नजराने हैं खुदावन, तेरे हुजूर लाते हैं खुदावन। एकता हम तेरे बच्चे हैं खुदावन, तेरे हुजूर आते हैं खुदावन। हर रोज एकता तू हमें एक नया मसा देता है खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। खुदा आपके आगे मिन्नत करते हैं खुदा, जितने भी खुदा हम सर नगू है खुदा आपके सामने है खुदा, आपकी इस पाक आवाज को एकदा हमने सुना है खुदा, और एकदा हम सब एक दिल एक जान और एक आवाज होकर आपसे इल्तमास करते हैं खुदा, हमें उन लोगों में शामिल रखना है खुदा कि जो कि हर वक्त अपनी आंखें खुदा खुली रखते हैं, रूहानी आंखें एकदा हम सब की खुली रहे हैं खुदा, और एकदा हम आपके कलाम को एकदा समझ सकें, एकदा सुन सकें खुदा, और कभी भी एकदा इब्लीस हमें एकदा गुमराह ना करने पाया खुदा, बल्कि हम आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक है खुदा हम आपकी भेड़े रहे हैं खुदा। एकदा हम पे आपकी मोहर हो चुकी है खुदा, और एकदा अगर कोई हमारे खानदान में कोई ऐसा फर्द है एकदा जो अभी भी भटका हुआ है खुदा, एकदा आज उनको भी सबको एकदा आपके सामने लाते हैं खुदा, आपके एकदा तख्त के सामने लाते हैं खुदा, उन सबको अपनी पनाह में ले लें खुदा, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि वो 99 को छोड़कर एकदा उस 100वीं भेड़ के पीछे जाता है खुदा, और उसको ढूंढ के लाता है खुदा, और उसकी जख्मों पे मरहम पट्टी रखता है खुदा। इसी तरह एकदम अपनी तमाम 100 की 100 भेड़ों को एकदम पूरा करें खुदा, और एकदम उनकी मरहम पट्टी करें खुदा।
एकदम हम दुनिया में रहते हुए एकदम गुनाहगार हैं खुदा, और एकदम हम गुमराह हो जाते हैं खुदा, हम भटक जाते हैं खुदा, लेकिन एकदम आप हमें अपनी बाहों में छुपा लें खुदा, एकदम आप हमें भटकने ना दें खुदावन, एकदम हम हमेशा खुदा आपके लिए तैयार रहे खुदावन, एकदम हमारी आंखें हमेशा आपको तकती रहे खुदा, जिस तरह एकदम हिरनी पानी के नालों को तरसती है खुदा, इसी तरह एकदम हम आपके कलाम को तरसे हैं खुदा, हम आपके कलाम को हासिल करने के लिए एकदम हर वक्त एकदम जागते रहे खुदा, हर वक्त हमारे दिलों में ये आग लगी रहे कि खुदा हमने आपके कलाम को सुनना है खुदा, आपकी आवाज को सुनना है खुदा, और कभी भी एकदम हम आपकी आवाज को एकदम इग्नोर ना करें खुदा, एकदम अपने दिलों को सख्त ना करें खुदा, बल्कि एकदम इस कलाम को एकदम कबूल करें खुदा, एकदम कबूल करके एकदम इस पे अमल करने वाले बने हैं खुदा, एकदम अमल करके एकदम हम दूसरों को एकदम आपकी तरफ लाने वाले बने हैं खुदा, एकदम ये हम सब की दुआ है खुदा, एकदम हम सब जितने भी एकदम आपके हुजूर एकदम हाजिर होते हैं खुदा, हम अपने अपने मसले एकदम अपनी अपनी दरखास्त एकदम आपके सामने लेके आते हैं एकदम, एकदम जो हम दरखास्तें हमारे दिलों में है खुदा, जो हम एकदम कह नहीं सकते एकदम, आप उनको एकदम जानते हैं एकदम, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है खुदा, एकदम आप हमारी ख्वाहिशात को जानते हैं एकदम, आप Yes, हमारी जरूरियात को जानते हैं खुदा, आप हमारी परेशानियों को जानते हैं खुदा, आप yes, Lord. हमारी बीमारियों को जानते हैं खुदा, एकदम हमें हर जगह से एकदम जहां जहां हम कमजोर हैं एकदम हमारी कमियों कमजोरियों को दूर करें खुदा, Yes, हमारे लिए इलाही शिफा एकदम जारी करें खुदा, हम पे एकदम खास एकदम रहम करें खुदा, एकदम हमारा ईमान है कि एकदम आपकी नजर हम पर है एकदम, आपकी रहम वाली नजर है एकदम, करम वाली नजर yes, हम पे है खुदा, जब भी एकदम आपने हमें मौका दिया कि हम रोज एकदम आपके सामने आए हैं खुदा, और yes, आपसे मुलाकात करें या खुदा, और आपसे बातें करें या खुदा, और एकदम आप हमारी दुआओं को सुनते हैं खुदा, एकदम जबकि yes, सिस्टर अमनदीप ने एकदम दरखास्त की है खुदा, बड़े ईमान भरोसे तवक्कुल से एकदम उन्होंने दरखास्त की है खुदा, क्योंकि वो जानती हैं कि जिसकी परस्तिश हम करते हैं वो जिंदा खुदा है, और वो सब कुछ करने पे कादिर है खुदा, yes, Lord. नामुमकिनात का खुदा है खुदा, और एकदम आपके कलाम में लिखा है कि एकदम आप हमें हमेशा एकदम छुड़ाते हैं खुदा, और कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देते हैं खुदा, क्योंकि आप हमारी उम्मीद, आप हमारी चट्टान है खुदा, आप हमारा मजबूत किला है खुदा, और जो कोई आप पे ईमान रखता है खुदा कभी शर्मिंदा नहीं होता है खुदा, एकदम बड़े ईमान भरोसे तवक्कुल से एकदम आपसे मांगते हैं एकदम इनके बेटे के लिए एकदम, जबकि उसकी आंख को एकदम एकदम थोड़ा सा जख्म आया है खुदा, एकदम आपके लहू से एकदम शिफा जारी हो जाए खुदा, और Yes, एकदम जिस तरह आप एकदम हमेशा अपने लोगों को महफूज रखते हैं एकदम, आपके पाक फरिश्तगान एकदम हमेशा महफूज रखें एकदम, आपके पाक फरिश्तगान को एकदम एक एक फर्द के ऊपर, एक एक खानदान के ऊपर एकदम जो आपने मुकर्रर किए हैं खुदा, उनसे एकदम आप दरखास्त करें खुदा, कि एकदम अपना वादा पूरा करें खुदा, कि आपके कलाम में लिखा है खुदा कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें खुदा, इब्लीस हमें कभी भी नुकसान पहुंचाने ना पाए खुदा, एकदम आपकी शिफा जारी हो खुदा, उसकी मरहम पट्टी करो खुदा, उसके आंख को एकदम बिल्कुल एकदम ठीक कर दें खुदा, ताकि एकदम वो भी एकदम आपके पास गवाही देने के लिए आए खुदा, आपके कलाम में लिखा है कि एकदम आपने 10 कोड़ियों को एकदम शिफा दी एकदम, और उसमें से एकदम एक शुक्रगुजारी के लिए लौटा, एकदम हम उस एक कोड़ी की मानी तो एकदम जो शुक्रगुजारी लेकर आपके हुजूर आया खुदा, हम अपनी गवाहियां लेकर एकदम आपके हुजूर आए खुदा, क्योंकि एकदम आपको ये पसंद है कि जब आप हमारी जिंदगी में कोई मौजज़ा या कोई काम करें एकदम, हम आपके हुजूर एकदम शुक्रगुजारी करें खुदा, और एकदम दूसरों का ईमान बढ़ाने वाले हो खुदा, एकदम हम सब की निगरानी मदद हिफाजत करना है एकदम, जब हम एक दूसरे से जुदा होते हैं खुदा, एकदम हम सब एक दूसरे के लिए बाइस बरकत हो, कोई भी आपके एकदम इस घर में से एकदम आज खाली हाथ ना जाए, एकदम अपनी अपनी बरकतों को एकदम लेकर जाए खुदा, और दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बने एकदम, कल जब हम दोबारा मिलते हैं खुदा आपके हुजूर एकदम, जब हमने एकदम हमदो सना करनी है खुदा, अभी से आपके सारे एकदम परस्तारों को एकदम आपके हाथ में देते हैं खुदा, एकदम ताकि कोई भी एकदम जान जो है खुदा
एकदा अपने जो हदिये नजराने लाए एकदा पूरे दिल से लेकर आए, एकदा किसी तरह की रुकावट ना बने एकदा इब्लीस एकदा हम सब मिल के एकदा कल हम आपकी हमद सताइश कर सके या खुदा, और एकदा आप हमारे बंधनों को तोड़े एकदा, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है एकदा हमद सना और प्रस्तिश एकदा हमारे बंधनों को तोड़ती है खुदा, हमारे जुओं को तोड़ती है खुदा। एकदा हम सब मिल के एकदा आपकी सताइश करें खुदा। एकदा खादमा के लिए दुआ करते हैं, एकदा सिस्टर शाहीन के लिए खुदा आप उनको इसी तरह अपने कलाम के लिए एकदा अपनी खास जलाल के लिए एकदा इस्तेमाल करते रहे खुदा, और वो एकदा आपने जो भी उनको रोया दिया खुदा एकदा वो उस पे एकदा पूरी पूरी एकदा उतरे हैं खुदा, और एकदा आप उनसे जो भी काम ले रहे हैं खिदमत ले रहे हैं खुदा उनको एकदा बहुत बड़ी बरकतों से नवाजना है खुदा, और एकदा उनकी इस रोया को एकदा पूरा करें या खुदा। हम जितने भी लोग एकदा सुनते हैं एकदा और भी जो एकदा आने वाले हैं इस ग्रुप में या आगे को आएंगे या खुदा उन सब को भी एकदा आपकी खास हिफाजत में रखते हैं खुदा। ये सब कुछ मांगते और पा लेते आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनका जो मसा है आज खुदा ने हमारे ऊपर डाला है कि खुदा जो है फिर से हमें नया जोर और जो पायदारी है, जो भी कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ तो खुदा ने उसको पायदारी बख्शी है, यानी उसको हमारे अंदर पहले मजबूत किया है। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। और सिस्टर के बेटे के मैंने इस तरह देखा जैसे एक जैसे कहें एक घर सा बन गया है जो भी उसका है। तो खुदावन जो है जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिंदगी में खुदावन जो है उसको पहले तैयार कर रहा है। तो मेरा ईमान है कि जैसे कह लें कि खुदावन ये सारा कुछ सिचुएशन जो है ये यूज कर रहा है ताकि उसका जो ध्यान है या खुदावन उसका जो ईमान है खुदावन की तरफ हो। तो इसलिए एक उसके मुझे ऐसे बिल्कुल नजर आया जैसे एक छत सी बन रही है, यानी खुदावन जो है जिंदा खुदा जो है वो उसको पहचानेगा और खुदावन जो है उसका कह लें बाप होगा या खुदावन उसकी जिंदगी में काम करेगा। तो इसलिए खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि खुदावन सिस्टर को और उसकी फैमिली को जो नजात है दी है उसने, और खुदावंद उनकी जिंदगी में काम करेगा उसकी फैमिली। जी अगर किसी और ने कुछ देखा है या कुछ कहना चाहता है, कोई टेस्टमनी है तो देखते हैं। जी किसी ने कुछ कहना है? नहीं तो फिर हम यही कहना है कि आज का खुदा उनका कलाम जो था वो बहुत अच्छा था, और बस लग रहा था कि जैसे खुदावंद हमें प्यार करते हैं और खुदावंद हमें बता रहे हैं कि वक्त बहुत कम है, और हम ये कि खुदावंद के हुजूर जो भी हमारी कमियां कमजोरियां उसको दूर करें और बस खुदावंद के लिए तैयार रहें फुल टाइम। बिल्कुल। हालेलुया। जी चलें, खुदावंद हम सबको तैयारी का फजल जो है बख्शे और हम उसकी आमद के लिए तैयार हों। उसके पहले तो रैप्चर के लिए तैयार हों और फिर खुदावन के साथ बातचीत करने के लिए। हालेलुया। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू।